بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت نظیر نیوز کے ساتھ میں ہوں عمران خان۔ آج ہمارے ساتھ چودھری محمد یاسین گلشن صاحب وزیر حکومت آزاد جموں و کشمیر تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یاسین گلشن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ چند ایک عوامی سوالات ہیں جو آپ سے کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا کیا کام کیے، کیا کیا میگا پروجیکٹس دیے؟ اختصار کے ساتھ آپ تھوڑا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی آنے کی، اور پھر یہ روزنامہ جو نکلا جنت نظیر، اس کے آپ حافظ ہیں یا اس پہ آپ کا بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کا سوال جو ہے کہ آپ نے کیا کام کیے، کام بے شمار ہوئے پورے حلقہ انتخاب کے ساتھ عباس پور میں نے جو بڑے کام کیے اس وقت وہ یہ ہے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہمارا، اس کا کہیں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں نے پچھلے دورانیے میں 2001 سے 6 تک اس کے ٹینڈر کروائے، کام شروع کروایا، لیکن بد نصیبی ہماری یہ تھی کہ زلزلہ آیا، اس زلزلے میں وہ بلڈنگ جناب کام رک گیا، ڈسٹرب ہو گئی کچھ، پھر یہ تقریباً 5-7-10 سال کام بند رہا۔ پھر اس عرصے میں 2016 میں جب میں بنا تو میں نے پھر اس کا کام جو ہے وہ افسر نے شروع کرایا، پیسے مہیا دیے، ایرا سیرا کے جو ہے ان سے مرابطہ کیا، اپنے پرائم منسٹر صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی بڑی دلچسپی لی، تو ہاسپٹل کی جو ہے وہ بلڈنگ ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بلڈنگ، پھر اس کی آسامیاں جو ہیں، اس وقت مالی بحران تھا، پریشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہ ہاسپٹل ہمارا جو ہے یہ شروع ہو جائے، فوری طور پہ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت میں ہو جائے شروع ہو۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہمارے یہاں اس وقت منظور ہوئے وہ ہیں 6 ڈاکٹر، اور نرسنگ وہ ہیں 4 پوسٹیں 16 گریڈ، اسی طرح پر کچھ چھوٹی پوسٹیں ہیں، تو پوری پوسٹیں نہیں مل سکی ہمیں ہاسپٹل کی، لیکن اس کے باوجود ہمارا ہاسپٹل چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور میری یہ خواہش ہے کہ ہاسپٹل جتنا جلدی ہو سکے گی چلے۔ اس کے علاوہ میں نے یہاں بڑا جو دوسرا کام کیا، ایکسین برقیات جو دی ہیں کیا جو ضلع میں ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں سے بچہ ایکسین یہاں عباس میں جاتا ہے، اور اب انشاءاللہ یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد یہاں ایڈیشنل سیشن جج جو ہے وہ بھی عباس میں آئے گا، اور یہاں وہ بھی زیر کارروائی کر رہا ہے، اور وہ جلدی ہو جائے گا۔ تو میری جو خواہش ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کام ہوں، ہمارا حلقہ جو ہے یہ بارڈر پہ ہے سارا، تو یہاں غریب لوگ ہیں، لوٹے پچھلے لوگ تھے، عباس پور جو ہے بالکل ختم ہو گیا تھا، لیکن اب تن کے چون کے میں عباس پور کی مرضی حیثیت کو بحال کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فیملی گجر فیملی ہے، اس کے چند لوگ ہیں جن کے شکوے شکایات ہیں، ان کا کیا احتسال ہوا ہے، یہ آپ جو ہے نا اس کی تفصیل بتائیے۔ جہاں تک آپ نے گجر برادری کی بات کی ہے، استحصال کا تو میں نے تو نہیں کیا، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں کہ ان کا کیا ہوا تو پھر اس کا ازالہ کریں گے۔ کچھ باتیں یہاں انٹرویو میں کرنے کی نہیں ہے، میں کیا کروں کیا کہوں، کیا بدنصیبی ہے میری کہ گجر برادری کو اس جگہ تک پہنچانے میں میرا بڑا کردار ہے، اور وہ ویسے نہیں ہوا، وہ میں نے اپنے گھر سے قربانی شروع کی۔ میرا بھتیجا جو ہے یہاں اس چوک میں قتل ہوا، کام کیا اور برادری کو پسپا نہیں ہونے دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا نائب قاصد نہ لگے، یہ کوئی زیادتی نہیں، میں نہیں اس کو زیادتی سمجھتا، لوگ سمجھتے رہیں تو سمجھیں۔ چپراسی نہیں لگ سکا یا کلرک نہیں لگ سکا، زیادہ اگر کوئی ناراضگی کا جو اظہار کر رہا ہے، کہتے ہیں ہمارا استحصال ہوا، وہ چپراسی اور کلرک ہے، تو میں اپنے تمام برادری کے لوگوں کو نہیں بلکہ تمام برادریوں کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے پاس ڈگریاں موجود ہیں لیکن علم نہیں ہے، علم حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ہر میرٹ ہے
फारूक हैदर साहब का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने मेरिट कायम किया MTS और फिर PSC में जो है वो एक जनरल की सरबराही में, लेफ्टिनेंट जनरल कमाल मोहसन जो हैं वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनकी सरबराही में वो चेयरमैन बने और बिल मेरिट में। और फिर मैं आप एक बात और बताऊं कि यहाँ लोग डंडी मारते हैं, बहुत खराबियाँ करते हैं। हमारे मेंबर थे एक चौधरी मनीर जो यहाँ पुंछ में DC भी रहे और सेक्रेटरी सर्विसेज रिटायर हुए हैं, वो जिनका दामाद इस वक्त भी पुंछ में DC है। आधे नंबर से उसकी बेटी फेल हो गई। अगर वो मेरिट कायम ना करता, ना इंसाफी करता पूरी कौम के साथ, तो उसकी बेटी लेक्चर बन जाती। लेकिन आधा नंबर जो है 1/2 नंबर से वो फेल हो गई और नहीं आ सकी मेरिट। आपको, हमारी हुकूमत को और हमें सबको, हमारे कमीशन के जो चेयरमैन और उनके मेम्बरान हैं, उनको मुबारकबाद दें कि वो इतना मेरिट कायम करते हैं कि अपनी बेटी के लिए भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है। फिर NTS के अंदर देख लें, जब मैं 2016 में मेंबर असम्बली बना, लोगों ने मुझे ये कहा, जो खासकर छोटी बिरादरी के लोग हैं जिनके साथ हमेशा ज्यादती हुई, मेंबर असम्बली जिस बिरादरी से भी कोई बना, छोटी बिरादरी के साथ ज्यादतियाँ होती रही। हमने कहा, मुझे बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ मिली और MPhil थे, उन्होंने ये कहा कि आप खुदा के लिए मेरिट कायम करवा दें। हमने NTS किया, कोई उसमें किसी की मदाखलत नहीं है, ना हुकूमत की है, ना किसी और अदारे की है। उस पर जो मेरिट पे जितने लोग छोटी बिरादरी के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, लायक बच्चे थे या बच्चियाँ थे, सब मेरिट में आए और उनकी तकरीयाँ। इस पे हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए और जो मेरी बिरादरी के लोग हैं उनको भी, मुझे भी और हुकूमत को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरिट कायम हुआ है, इंसाफ कायम हुआ है। ये बात हमारी सोच जो अच्छी सोच नहीं है कि भाई ये छोटा सा करना है। गुजर बिरादरी को नाराज़ नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है नाराज़ नहीं है। कुछ लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन चलो अगर थोड़े बहुत हैं, लेकिन उनकी असल जो ये वजूहत मैंने बताई है वो ये है। तो इसमें मैं एक तो नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा किसी के साथ। इलेक्शन जीतूँ हारूँ कोई नहीं, अल्लाह की मखलूक है सारी। हज़रत अली का कौल है कि काफर की हुकूमत रह सकती है, जालिम की नहीं रह सकती, और मेरिट पे माल करने की हुकूमत नहीं रह सकती। बहुत अच्छी बात है। चंद लोगों का ये कहना है कि अब आपको आराम करना चाहिए, आपकी सेहत इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देती। मेरा सवाल यह है कि आपके अंदर वो जोश और वलवला जो पहले पुराने पिछले चंद सालों का या जवानी का है, वो अभी तक मौजूद है, या कि आप इसको क्या समझते हैं कि कोई मतलब आपकी सेहत इसका सेहत का ताल्लुक है, ये किसी के बस की बात नहीं। ये सब कुछ मेरे अल्लाह की तरफ से। मुझे जो बीमारी आई, ब्रेन हेमरेज हुआ, ये अल्लाह की तरफ से। इसमें ना किसी बिरादरी का, ना किसी इंसान का या फर्द का उसका कोई अमल दखल है, ये कुदरत की तरफ से होता है। लेकिन मैंने अपनी इस बीमारी में भी मैंने चारपाई लगाई अपने मकान के ऊपर, लेकिन लोग डिस्टर्ब ना हों, वो आसानी से मुझसे मिल सकें और उनके मामलात हल करें। और इस वक्त तक मामलात हल हो रहे हैं इंशाअल्लाह लोगों के। इस बीमारी के आलम में भी कर रहा हूँ। जिस दिन मैं ये समझूंगा कि लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकता, बेबस हो गया हूँ, मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती है कुछ, उसी दिन मैं ऐलान कर दूंगा कि मैं सियासी से रिटायर हूँ, नहीं करता। जोश और वलवला हस्बे साबिक़ ही है। जोश और वलवले की क्या बात, जोश वलवला तो लोगों को करना चाहिए। मेरे अंदर जोश वलवला मौजूद है, लेकिन ये काम लोगों को करना चाहिए कि क्या मैं, अगर मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, असल में लोग बुनियाद बना रहे हैं ना जी, उनसे पूछा जाए। सियासत के अंदर बुनियाद हर आदमी बनाता है, जो भी मुखालफत, जो पसंद नहीं मुझे करता है, उसने बुनियाद तो कोई ना कोई बनानी है, झूठ फराड करके जो भी करना है उसने करना है। यही आपसे ये पैगाम मतलब लोगों तक ये मैं पहुंचाना चाहता हूँ अपनी वसातत से कि इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, सेहतमंद है आप। कोई नहीं, अल्लाह का करम है, कोई पता नहीं होता ज़िंदगी का। अभी अगर जो दोस्त भी ठीक भी हो ना, मैं यहाँ से इस वक्त ठीक आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप भी बैठेंगे, हो सकता है अल्लाह ताला को अगर मंजूर नहीं है तो हम दोनों यहाँ अपनी सीटों से खड़े नहीं हो सकते हैं, यहाँ ही हम ख़त्म हो जाएंगे। ये अल्लाह के फैसलों को चैलेंज लोग जो करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। तमाम मामला जो हैं तो अल्लाह के फजल करम से ठीक है, मामला ठीक है। जब मैं समझूंगा कि नहीं, अब कुछ लोग लड़ते हैं इलेक्शन, ये हल्का इंतखाब जो है ये इतना मुश्किल है, और हमारा हल्का इतना जरखेज और ज़हीन लोग हैं कि हर दूसरा आदमी जो है वो मेंबर असेंबली बनने का क्वालिफाइड करता है।
اور کوالیفائڈ کرتا ہے، لیکن آگے اللہ کرے ہر انسان کو یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، غریب باپ کا بیٹا ہوں، کوئی میرا والد نہ وزیر اعظم تھا نہ وزیر تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ میں آج یہاں ہوں، جدھر ہوں لیکن میں بڑی دیانتداری سے یہ کوشش کی ہے کہ دیانتداری سے پورے انسانوں کی فرض کیا۔ میں یہ بھی بات اپنے لوگوں کو کہتا ہوں، یہ بھی ایک ناراضگی ہے میرے دل میں، جو وہ سوال آپ کا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری اللہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ایک ماں کو یا باپ کو اکلوتا بیٹا جتنی اس سے محبت ہے، اس سے 70 گنا قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے ہے۔ پھر اپنی مخلوق کا جو مخلوق ہے ہماری، اس کا خیال رکھنا چاہیے، انصافی کرنا چاہیے۔ فرض کیا چھوٹی برادری کا، میں بات آپ کو بات لمبی ہو جائے گی میری، لیکن بات کرنی پڑتی ہے۔ جس برادری کا بی ڈی ممبر نہیں بن سکتا ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر نہیں بن سکتا ہے، ممبر اسمبلی تو اس کا بن ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کیا زندہ رہنے کا، جینے کا ان کو حق ہے یا نہیں؟ اگر ہم ان کا حق ماریں گے برادریوں والے، تو پھر کیا ناانصافی یہ نہیں؟ میں نے کوشش کیا کہ انصاف مہیا کیا جائے، وہی انصاف میری برادری کے بڑے سے بڑے آدمی کا، اور وہی حق اس چھوٹے جو جس کا ایک گھر ہے اس کا بھی ہوگا۔ جی بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو کام نہیں ہو سکے آپ کے اس دور اقتدار میں، تو وہ کیا کیا ہیں؟ میرا سب سے بڑی جو ترجیحات ہیں، سڑکوں کا اللہ کا کرم ہے، سڑکیں بنائی ہیں، میں نے ہاسپٹل بنا دیا۔ یہاں ہمارے پرائم منسٹر نے 2 چیزوں کے اعلان کیے تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج کی ہونے والا ہے، مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو خوشخبری دیں گے کہ وہ ہو جائے گا، وہ ہو گیا، کارروائی چل رہی ہے۔ ایک انہوں نے ڈی او کے اعلان کیا تھا، یہاں ڈی او ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا، ایک ایکسن شہرات کا، وہ زیر کارروائی میں، وہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ابھی ہو سکے اس الیکشن میں دن تھوڑے رہتے ہیں، لیکن وہ ہوگا۔ وہ بھی میرا جو بڑا مسئلہ جو ہے یہاں کے، میری زندگی اور موت کا معاملہ ہے، وہ ہے کہ عباس جو کی مرکزیت بحال کر کے یہاں ضلع بنایا جائے، اور اس کے لیے پرابلم ہے، مجھے بہت پرابلم کیونکہ ضلع جہاں بھی بنتے ہیں وہ علاقوں پہ بنتے ہیں، تو پھر وہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں انٹرویو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ اگر آپ اللہ کرے دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کون سا کام آپ کریں گے؟ میرا سب سے پہلے ترجیحات میں یہ ہے کہ 1 نمبر تو لوگوں کو روزگار مہیا کرنا ہے، غریب لوگ ہیں، بارڈر پہ رہتے ہیں، گولی میں کھڑے ہیں۔ دوسری جو ہے وہ سڑکیں جہاں جو باقی رہتی ہیں وہ سڑکیں پختہ کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو آسان ہو۔ تیسری ترجیحات یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل ہوں اور بہتر ہوں، ادارے بہتر ہوں، کالج بہترین چلیں، اسکول بہتر چلیں، وہ چلائیں گے۔ میں نے ابھی اس دورانیہ آپ کے اس میں 4 ہائی اسکول دیے ہیں، میں نے وہاں برادری کا کہیں آنسر نہیں ہے۔ میں نے ایک سکول ڈنگا چھیتر کنوئیہ میں دیا، ہائی اسکول۔ دوسرا ہائی اسکول میں نے کاموڑا میں دیا، گمیر کاموڑا میں۔ تیسرا ہائی اسکول بچیوں کا کھڑان میں دیا کہ کھڑان کی بچی جو ہے وہ ہیرے جا کے 9 کلاس میں پڑھے، اگر جوان بچی ہے وہ بسوں پہ نہیں سفر کر سکتی، نہیں جا سکتی، لہذا وہاں سکول دیا۔ اور چوتھا سکول جو ہے چفاڑ بالا میں دیا۔ 5واں ہائر سیکنڈری سکول یعنی جس کو انٹر کالج کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ 33 میں دیا۔ مڈل سکول 2 دیے، ایک جھنڈا کلرا میں بچیوں کا سکول دیا، ایک منگوڑا میں، عثماندہ علاقہ ہے منگوڑا، دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں بچوں کا سکول مڈل جو ہے وہ دیا۔ یہ آئندہ جو ہے اس کو کوشش کریں گے کہ جہاں ڈگری کالج ضرورت ہے وہاں ڈگری کالج دیں گے، یعنی ایجوکیشن پر پوری توجہ کریں گے، رکھیں گے کہ تاکہ لوگوں کو تعلیم آسانی سے میسر ہو سکے اور وہ حاصل کر سکیں۔ یہ ایک یہاں سے سوال پیدا ہوا ہے چھوٹا سا، وہ یہ ہے کہ یہ منگوڑا مرچکوٹ کی جو سڑک ہے اس کا کیا ایشو ہے؟ یہ بھی بہت ڈسکس ہو رہا ہے یہ ایشو، تو اس پہ میں سر آپ ایشو نہیں ہے، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ راتوں رات یہاں یہ ملک سارا پیرس بن جائے، وہ راتوں رات تو نہیں بن سکتا ہے، مرحلہ وار ہوتا ہے۔ منگوڑا اور مرج کوٹ کی میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے دور میں گیا تو وہاں کوئی سڑک نہیں تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی نہیں۔ میں نے کچی سڑک ٹھنڈی کسی سے مرج کوٹ تک
9 किलोमीटर जो खरीद रमन से मिलती है, बल्कि 10-11 किलोमीटर सड़क मैंने कच्ची पैरे में की। उसके बाद मैंने 6 किलोमीटर पुख्ता एक ही दफ़ा रखी। हालांकि मेरे उस वक्त मैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े सीनियर लोगों के नाम नहीं लूँगा मैं इधर, उन्होंने मुझसे नाराज़गी का इजहार किया और लड़ाई की कि आपने एक जगह पे 6 किलोमीटर पुख्ता सड़क क्यों दी, ये तकसीम करके देते। लेकिन मैंने कहा कि अगर 6 ना देता तो वो मकसद सड़क निकलने का जो है वो पूरा नहीं हो सकता था। मैंने 6 किलोमीटर सड़क पुख्ता दी, 2 किलोमीटर उसके बाद बनाई। आज सड़क हमारी जो है एंड आखिर पे मचकोट के आखिर तक जाती है और आगे उसको बांडियों से शुरू खरीदने की तरफ करेंगे इंशाल्लाह। और वहाँ ये किया कि बगैर मुतालबे के मैंने मचकोट के अंदर डिस्पेंसरी दी, मैंने मचकोट के अंदर गर्ल्स मिडिल स्कूल दिया और 100% उनके पोल जो है वो नीचे से मचकोट से शुरू किए तो एंड मचकोट तक पहुँचाए। अच्छा ये सर बताएं कि ये जो कारकुनान है चंद एक, चूँकि हमारा चूँकि वास्ता होता है लोगों के साथ आना जाना है, चंद एक जो है ना ये मायूस कारकुनान है, उनके लिए आपका जो पैगाम है वो आप बता दें ज़रा। मायूसी वैसे ही होना है, मायूस होना ही नहीं चाहिए। अगर इतना कुछ करने के बाद फिर भी मायूस हैं तो मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनकी मायूसी को दूर करे। कोशिश करूँगा आइंदा भी कि मायूसी को दूर किया जाए। अगर है किसी की, होनी नहीं चाहिए, तो अगर है तो उसको दूर करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। अच्छा सर एक और सवाल है, काफ़ी दिन से खटक रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इलेक्शन इतना आसान हो गया है कि यार कसो नाकास इलेक्शन की तरफ और डायरेक्टली सीधा सीधा जो है ना असम्बली के इलेक्शन लड़ने का ऐलान करता है, तो मतलब कुछ सियासी सफ़र होता है, कुछ सियासी सफ़र तय करके फिर उस मंजिल तक आदमी पहुंचा। बड़ी मैंने तो आजकल तकरीबन ये है कि अक्सर लोग मैंने देखा है जी कि डायरेक्ट असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर देते हैं। क्या ये इलेक्शन आसान हो गया लड़ना? अगर आसान हो गया है तो फिर हम भी ट्राई करें। बात पे तो मैं बहुत बात कर सकता हूँ, लेकिन करूँगा तो कहीं मुझे प्रॉब्लम ना, नुकसान ना हो। बात ये हमारी बदनसीबी ये है कि मैं अपनी बरादरी पे बात करूँगा कि जो बच्चा, जो भाई मेरा LLB करके कराची से आता है, वो कराची से ही मेंबर असम्बली बन के इस हल्के में दाखिल होता है। कुछ लोगों को मैंने ये कहा कि हालत फिर कराची ये उठा लें, उधर ये मेंबर असम्बली आप बन गए, आपने LLB कर ली है। मेंबर असम्बली बनने के बाद बड़ी जिदोजहद करनी पड़ती है। मैं बड़ी जिदोजहद की इस तरह करता रहा एक सियासी कारकुन की हैसियत से। फिर 87 में 87 में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर बना, बड़ी मेहनत की, हर जगह पे गया, काम किए। फिर 2001 में मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का टिकट लिया। टिकट में आज लोग छोटे छोटे गोते जो हैं बरादरी के अंदर, उन पे लोग खड़े होते हैं, कहते हैं हम मेंबर असम्बली बन जाएंगे। मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ और अपने अभी जो गुजर बरादरी है उनको भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि सारे गुजर 100% मुफीद हो जाए फिर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। मुफ्ती मोहम्मद से और चौधरी बशीर से मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं छोटा हूँ उनका। अगर वो नहीं इतना आगे बढ़ सके, नहीं जीत सके, तो और भी कोई नहीं जीतेगा, ये आप क्या लिया है। और जिस वक्त तक चौधरी बशीर मैदान में रहा, मैं कभी उम्मीदवार नहीं बना। जब वो वफात पा के दुनिया से चले गए, मेरे बड़े मोहतरम थे वो, उसके बाद फिर कोई उम्मीदवार नहीं था, तो मैंने इलेक्शन में हिस्सा लेने का, इनके चुने हुए थे, कोशिश की। टिकट मुझे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का मिला और फिर भी इलेक्शन जीतने का मैं आपको बताया। खाली बरादरियों पे जो बरादरियों के लोग बात करते हैं ना, वो नहीं जीत सकते। मेरे साथ उस वक्त 2001 में दिल्ली बरादरी की तमाम लीडरशिप मेरे साथ थी और मलयाल बरादरी की भी सारी लीडरशिप मेरे साथ थी और फिर सुदन बरादरी 100% मेरे साथ थी, जखर बरादरी 100% 100% मेरे साथ थी। फिर जाकर 2001 का इलेक्शन में जीता मेरे साथ। इनाल बरादरी मेरे साथ थी, मलक भी जो है 50% कम से कम मेरे साथ थी, अवान बरादरी भी थी। सब बरादरियाँ इकट्ठी हो गई और फिर 2 बड़ी बरादरियाँ जो इलेक्शन लड़ने वाली हैं, दिल्ली बरादरी और मलयाल बरादरी, उनकी लीडरशिप सारी मेरे साथ थी।
मलदयार बरादरी के बड़े आदमी थे हाजी अफसर साहब हमारे, उनके भाई सरदार यूसुफ 70 में वजीर बने थे, उस वक्त वो भी मेरे हमारे में। उनका बेटा सरदार अकबाल भी मेरी हमारे में था। तो यूँ हमारे एडवोकेट जो फरीद रमन वाले हैं वो भी मेरे हमारे, कबीर चुगताई भी मेरे हमायती थे, अखलाक अयूब साहब भी मेरे हमायती थे, और बेशुमार नाम तो सबका नाम दे सकूँ इस वक्त बहुत लोग। इसी तरह दिल्ली बरादरी के सरदार यार मोहम्मद खान 1946 में मेंबर असम्बली बने और वो आज़ाद खान के करीबी अजीज थे। सरदार आज़ाद की ज़िंदगी जो रिटायर हैं, उस इलेक्शन में वो भी मेरे साथ थे और मुतर्रक जो है वो काम कर रहे थे और इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। वकार चेयरमैन जो है दरे शेर खान से वो मेरे साथ था। सरदार अली अहमद खान साबक डिस्ट्रिक्ट जिला कौंसिल का मेंबर मेरे साथ था। सरदार मजीद मंडोर से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का मेंबर वो मेरे साथ था। इंस्पेक्टर रिटायर्ड सरदार याकूब खान दिल्ली बरादरी से उनका ताल्लुक है, वो भी मेरे साथ थे। शाहिद नवाज एडवोकेट मेरे साथ था, मंजर बशीर एडवोकेट मेरे साथ था, यानी दिल्ली बरादरी की लीडरशिप और कारकुन मेरे साथ थे। सुल्तान बरादरी के नसीम फरहाद मेरे साथ था, अमजद अली साहब मेरे साथ थे और बाकी सुल्तान बरादरी के तमाम लीडरशिप और उनके कारकुन थे वो मेरे साथ। फिर जाके इलेक्शन जीता। ये आसान काम नहीं है जिस तरह लोग आजकल गोतों में या अपने गांव के महलों में उनके खड़े हो जाते हैं मेंबर असम्बली के बनेंगे तो देखेंगे तुम्हारा साथ। हाँ नहीं ठीक है, हक तो हर आदमी का इलेक्शन लड़ना है। हाँ जी बिल्कुल, वो तो नहीं इलेक्शन लड़ना हक उसका भी है जो बनने वाला है, जो गरीब आदमी मस्कीन है जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, हक उसका भी उतना ही है। लेकिन ये हमें अकल और शऊर अल्लाह ताला दे अगर तो हमें भी सोचना चाहिए इस पर। अच्छा आखिरी सवाल है, आपका टाइम काफ़ी कीमती है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो चूँकि ये भी ज़रूरी है जो मैंने किया, ये भी आवाम तक आपकी बात पहुँचाना आवाम ये भी बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का दौर बड़ा हसास दौर होता है और अमन व अमान को भी ख़तरा होता है मोस्टली इलेक्शन के दौरान में। भाईचारे, रिश्ते, रवादारी, ये दोस्ती वगैरह जो है ना महसूस ना करें आप। लीडर्स ज़ात की वजह से बड़ी दाव पे लग जाती है ये बात है ना। तो कोई ऐसा खूबसूरत पैगाम दीजिए, मतलब आप अवाम उन्नास को दीजिए, तो आप वो वोटर न्याजी साहब के हों, हमजा यूसुफ साहब के, तमाम अवाम उन्नास को, कि जिससे भाईचारा की फ़ज़ा कायम रहे और अच्छी फ़ज़ा रहे जिससे इस हमारे हल्के के अंदर। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, मज़ीद अच्छी बन जाए, अच्छी से अच्छी बन जाए। देखें जी मैं 2001 में बना, 2001 में मैंने वोट लिए 13,004 वोट। फिर दूसरा इलेक्शन मैंने 2006 में लड़ा। वजूहात नहीं यहाँ बयान करूँगा इंटरव्यू में, लेकिन कोई वजूहात थे, 55 वोटों से मैं आ रहा। लेकिन वोट लिए मैंने कितने, 13,900 कुछ। फिर 11 का इलेक्शन मैंने लड़ा, 11 में मैंने वोट लिए कितने के 17,000। फिर 16 का इलेक्शन लड़ा तो 16 में मैंने लिए 20,000 वोट। इलेक्शन लड़ने के बाद 10% लोग जो है वो नाराज़गी होती है, मायूसी होती है, जिस तरह के आपने वो पहला सवाल किया था, बेशुमार बातें होती हैं। लेकिन मेरे वोट बैंक इसीलिए बढ़ा कि मैंने रवादारी, भाईचारा कायम रखा, लोगों के साथ इंसाफ किया, तामीर और तरक्की के साथ किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, तो आगे बढ़ता गया, पीछे नहीं हो। एक आखिरी इलेक्शन जो 16 का मैंने लड़ा उसमें मैंने 20,000 वोट लिया है। इसी कारकर्दगी पे, भाईचारे पे फर्क किया कि नीचे दिल्ली बरादरी है जिनके मेंबरान असम्बली 1946 से जिस तरह मैंने जिक्र किया बनते रहे। मलदयार बरादरी है, उनके 70 में सरदार यूसुफ साहब मिनिस्टर बने थे, तो मैंने रवादारी उनको साथ चलाया। उन बरादरी, बड़ी बरादरी को जो इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, सुरन बरादरी को साथ चलाया, जनाल बरादरी को साथ चलाया, कैनी बरादरी को साथ चलाया, तमाम बरादरी को साथ चलाया। उसकी वजह से मेरे वोट बैंक बढ़ता रहा आगे। अब जो है उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे मैं जो है इस दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह उससे आगे और मज़ीद वोट पड़ेंगे मेरे, और मैं उससे ज़्यादा वोट लूँगा।
क्या तवक्को है आपकी कि कितने की ज़्यादा लीड हो? नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ, लेकिन तजर्बे की अभी इलेक्शन शुरू हो जाए तो फिर ये भी आपको बता देंगे कि कितने लेंगे। जब मैं फील्ड में जाऊँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं कितने लूँगा। हिसाब किताब में मैं लायक हूँ नलायक नहीं हूँ, मैं हिसाब किताब कर लेता हूँ। अल्लाह के फजल से। जी जी, वो मेरा सवाल थोड़ा सा ये था कि आम जो अवाम नास हैं, ख्वाह वो किसी भी मतलब ये है कि अपने लीडर के सपोर्टर हैं, उन सब को आप थोड़ा सा अमन का भी पैगाम जो देना चाहते अमन का तो मैं हमेशा देता रहा हूँ और आज भी ये कहता हूँ कि हम एक घर के लोग हैं, सब भाई हैं। कोई मैंने जब ये नहीं सोचा, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सारे इलेक्शन लड़ा हूँ, तो मैंने कभी ये सोचा कि फलां ने मुझे वोट दिया तो फलां ने नहीं दिया, तो उनको क्या तकलीफ है, वो क्यों सोचते हैं, उनको भी नहीं सोचना चाहिए। ये बुरी बात है कि हम ये सोचें बरादरी के लिए कि उनको ये पैगाम दें कि फलां जो है। लेकिन ये मौके अल्लाह ताला देते हैं, और जब अल्लाह ताला दे दें तो फिर अल्लाह ताला की सारी मखलूक में सारी बरादरियाँ आती हैं, कोई एक नहीं आती है। फिर सबका ख्याल रखना चाहिए, तो मैंने रखा है, अमल रखा है। फील्ड के अंदर आप देखें, जाएं नीचे वाले हल्के में चले जाएं, हर यूनियन कौंसिल में जाएं, टूर लगाएं, आप जाकर देखें, लोगों से पूछें, आपको कहीं कोई ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी कि कहीं किसी के साथ ये। बहुत बहुत शुक्रिया यासिन गुलशन साहब। ये यासिन गुलशन साहब थे जो हमारे साथ इस वक्त कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। तो नाज़रीन, आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस पर आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।